Ladies and gentlemen, before we begin, we'd like to thank our furniture and decor partners, Anantaya and AKFD, for setting up the Authors Lounge and the main stage backdrop. An interdisciplinary UNESCO award-winning lifestyle and furniture design enterprise developing meaningful products, promoting crafts and impacting artisanal lives. Do not miss the Anantaya and AKFD booth at the festival marketplace. On that note, ladies and gentlemen, namaskar. Welcome to the 15th edition of Jaipur Literature Festival, protected by Dettol, Banega Swasth India at the front lawn. We bring to you first edition Ek Desh Bara Duniya. Shirish Khare in conversation with Prabhat Ranjan. Journalist Shirish Khare's Ek Desh Bara Duniya, translated as One Country, 12 Worlds, attempts to seek answers to the weighty, debatable issues concerning the social and economic conditions of rural India with the zeal of a researcher, investigator, and as a passionate observer. Khare's book is an engaging repertoire born from his visits to the countryside, which exposes the claims of development of the government machinery. His book reveals the sad picture of India that neither makes it to the breaking news on TV nor finds a place on the national page of any leading newspaper, but more often than not finds representation in the liminal space of local newspapers. Shirish Khare is a journalist based in Pune who's written extensively about the deprived and suffering communities. While writing for newspapers and magazines, the rural landscape has been a prominent theme in the hundreds of reports. In 2013, Shirish was applauded by the Press Council of India for his excellent reporting on Indian villages. Prabhat Ranjan is a fiction writer, translator, and editor, and is the author of Kotha Goi, the first Hindi book to explicitly trace the history of the Tawayaf tradition. He is the recipient of the Sahara Samay Katha Samman and Prem Chand Samman. We bring to you Ek Desh Bara Duniya. On that note, I would please request both of you to please unveil the cover. First edition presents Ek Desh Bara Duniya. Over to you, sir. Thank you. एक देश बारह दुनिया के इस सत्र में आपका स्वागत है। किताब का अभी हमने मुखड़ा देखा है। उसके लेखक शिरीष खरे हमारे सामने बैठे हुए, मेरे साथ बैठे हुए हैं। और ये किताब क्या है, इसके बारे में बताने से पहले, मैं सवाल शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक ऐसी विधा में लिखी गई किताब है जिसको रिपोर्टाज कहते हैं। और ये इस विधा में हाल के दिनों में, बहुत सालों में मैंने कोई ऐसी किताब नहीं देखी जो बहुत विस्तार से हिंदुस्तान के एक ऐसे चेहरे को दिखाने की कोशिश करती हो जो पहले नहीं दिखाया गया हो। इस तरह की किताबें बहुत पहले, मुझे याद आता है, फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखी थी ऋणजल धनजल, जो बिहार के बाढ़ और सूखा को लेकर उनकी यात्राओं से बनी हुई किताब थी। ये भी शिरीष खरे यात्राएं करते हैं, पत्रकार रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि ये सिर्फ एक पत्रकारिता ये किताब नहीं है। और इसमें बहुत सारे समाज के उस समाज के चेहरे, उस समाज की कहानियां हैं जिनको आमतौर पर हम नहीं देखते हैं। अपने समाज में वो चेहरे होते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। उनको इन्होंने देखने की कोशिश की है। शिरीष जी, इसमें एक कहानी है, मैं बातचीत शुरू करना चाहूंगा इससे, क्योंकि एक प्रसंग अभी जोड़ रहा है। गंगूबाई काठियावाड़ी एक फिल्म आई है जो कमाटीपुरा के एक सेक्स वर्कर, वहाँ के एक एक्टिविस्ट को लेकर, जीवन को लेकर बनाई गई है। और वो कहानी मैंने फिल्म तो नहीं देखी है, मैंने कहानी गंगूबाई काठियावाड़ी की पढ़ी थी। और आपने इस किताब का जो दूसरा ही चैप्टर है, जो दूसरी ही कहानी है, एक तरह से 12 कहानियां हैं, दूसरी ही जो कहानी है वो कमाटीपुरा को लेकर है। मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई कमाटीपुरा के बारे में। मैंने सबसे पहले उसी को पढ़ा क्योंकि मैंने खुद तवाइफों के जीवन को लेकर किताब लिखी है। तो
कमाटीपुरा के बारे में इतने विस्तार से मैंने नहीं पढ़ा था। आप ये बताइए कि किस तरह का अनुभव हुआ आपको कमाटीपुरा पे लिखने में, क्योंकि इन विषयों पर लिखना बड़ा मुश्किल होता है, और किस तरह के अनुभव हुए, किस तरह के लोग किरदारों से मिलना हुआ। मुझे इसलिए मैं थोड़ा और बोल लेता हूँ, क्योंकि आपने उसमें एक किरदार ने कहा है कि भाई देखिए यहाँ दो तरह के लोग आते हैं। एक जो वहाँ की स्त्री है जो आपसे कहती है कि यहाँ दो तरह के लोग आते हैं, एक वो होते हैं जिन्हें हमसे कुछ पूछना होता है, और दूसरे वो होते हैं जिन्हें हमें कुछ बताना होता है। मुझे इससे गैब्रियल गार्सिया मार्केज के जीवन के प्रसंग याद आ गया, जब मार्केज अपने युवा दिनों में एक रेड लाइट एरिया में किराए पर कमरे लेकर रहते थे, और उन्होंने उस दौर के बारे में लिखा है। तो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो आते थे सेक्स वर्कर्स के पास मिलने के लिए, वो उनसे ऐसी बातें करते थे जो बातें वो किसी से भी नहीं बताते थे, जो बातें वो अपनी पत्नी से, अपने घर में, अपने रिश्ते दोस्तों से, वो सबसे बड़ा जो सीक्रेट होता था उनके अपने पेशे का, उनके अपने जीवन का, वो उनको बताया करते थे। तो इसलिए मेरी बड़ी दिलचस्पी हुई इस तरह के किरदारों के बारे में। आप जरा उस यात्रा से शुरू कीजिए, इस किताब की यात्रा को। ये बात 2008-9 की होगी। मैंने एक स्टोरी करी थी, ग्रीन लाइट के इंतजार में जिंदगी। कोई 1000 शब्द की वो स्टोरी थी, और मुझे हमेशा लगता था कि ये जो स्टोरी है, कहानी इसके पीछे है, क्योंकि बेसिकली जो कहानी चल रही है वो कैरेक्टर में है। जब आप कैरेक्टर को लेकर बात करोगे तो वो कहानी बनेगी। और ये सोचते हुए मैं हमेशा सोचता था कि जब भी मैं जर्नलिज्म में एक ब्रेक लूँगा तो इस तरह की कहानियाँ लिखूँगा। और उसमें मेरे जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि पहले तो मैं कई तरह की धारणाएं बनाता हूँ, क्योंकि मैं एक ग्रामीण मध्यम वर्ग से आता हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने दुनिया देखी नहीं उस तरह की। तो एक जिज्ञासा है, एक उत्सुकता है, और उस उत्सुकता में जब मैं वहाँ जाता हूँ तो एक डर भी है और एक नैतिकता भी है, और कह सकते हैं कि एक पत्रकार भी उसके भीतर। लेकिन जब मैं वहाँ से लौटता हूँ तो धारणाएं टूटती हैं, और एक मनुष्य के तौर पे मैं लौटता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने बहुत कम दुनिया देखी है, कोई धारणा बनानी नहीं चाहिए। इसमें जो मैं बात करता रहता हूँ तो कई चीज़ों को मैं समझता हूँ, कई कैरेक्टर को। एक कैरेक्टर है जिसने की टीवी पे ही हरियाली देखी है और ट्रैफिकिंग की वजह से वो फंसी है, और उसने टीवी पे हरियाली देखी है, उसको एक्चुअल में खेत देखना है। एक कैरेक्टर है जो ये कहती है कि मैं बाहर निकलने से डरती हूँ और यहाँ मुझे आत्मविश्वास मिलता है, क्योंकि ये मेरा जॉन है, और यहाँ जिस तरह के लोग आते हैं, इतने अजीब अजीब लोग लगते हैं मुझे, कि मुझे लगता है कि बाहर की दुनिया बड़ी भयावह है, अंदर ही मैं सुरक्षित हूँ। तो इस तरह से कई इसमें कैरेक्टर मिलते हैं। और इसमें जो भाषा का बात है, तो जैसा उन्होंने बोला है मैंने उस तरह से नहीं लिखा है। इसमें ये सवाल हो सकता है कि भाई जो उनकी भाषा है आपने वैसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं जब लिख रहा था तो मैं खुद एक सूत्रधार था, और मैं सोच रहा था कि मैं अपनी भाषा में इन सारी चीज़ों को लिखूं। तो इसकी जो भाषा है वो साहित्यिक है, इसकी जो मानक है वो पत्रकारिता के है, और इसका जो दृष्टिकोण है वो सामाजिक विज्ञान का दृष्टिकोण है। और बस ये मुझे एक चीज़ सिखाती है कमाटीपुरा की जिंदगी, कि आप हर समय गलत भी हो सकते हो। आपकी धारणाएं जो आप पहले से सोच कर जाते हैं वो हो सकता है कि सही ना हो, जब आप उनसे मिलते हैं। बहुत आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा अपना भी कुछ इसी तरह का अनुभव था। जब मैं उस दुनिया के लोगों से, मैंने स्त्रियों से मिलना शुरू किया, बातचीत करना शुरू किया, तो मुझे मेरे अंदर की जितनी धारणाएं मेरे बचपन से थी वो सब धीरे धीरे टूटती चली गई, और मैं उन स्त्रियों को महान स्त्रियों की तरह, एक सामान्य स्त्रियों से ही बेहतर स्त्रियों की तरह देखने लगा था। लेकिन अब फिर से लौटते हैं। आपकी किताब पूरी की पूरी किताब यात्राओं की किताब है। बहुत सारी यात्राएं आपने इस किताब में कम से कम 12 यात्राओं को दर्ज किया है। लेकिन मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि इस किताब की यात्रा कैसी रही आपको, अब तक की जो यात्रा है, इस किताब को लिखने का अनुभव, क्योंकि एक ऐसे विषय को लेकर आप लिख रहे थे जिस विषय पे, जिन विषयों पर हिंदी में ये माना जाता है किताब नहीं बिकती है, नहीं पढ़ी जाती है। तो किताब के प्रकाशित होने के बाद की जो यात्रा है, बहुत कम समय की यात्रा है इस किताब की, वो अनुभव कैसा रहा है आपका? एक्चुअली यहाँ जब शुरुआत हुई तो मैंने सोचा नहीं था कि इसको किताब के रूप में रखें, इसीलिए जो है वो जो है कोई खास फॉर्मेट बना नहीं, और मैंने खास फॉर्मेट उसका समझा भी नहीं।
इसमें यात्राओं की किताब है, यात्रा वृत्तांत भी है, संस्मरण भी है, डायरी भी है, कविता भी है, फिक्शन भी है। जैसे कमाटीपुरा एक तरह का फिक्शन है जिसमें मैं भी उसके भीतर हूं और मेरी भी एक कहानी चल रही होती है। तो इसलिए शायद इसका एक कोई फॉर्मेट नहीं है। और बाद में जब ये आया तो ये कहा गया कि ये तो जो है कई तरह के, एक विधा दूसरी विधा का हस्तक्षेप कर रही है और इसको कौन सी विधा माना जाए। तो ये सवाल लेखक के लिए नहीं है कि कौन सी बड़ी विधा है, ये सवाल प्रकाशक के लिए है कि ये कौन सी बड़ी विधा है, किस श्रेणी में इसको रखें। तो इन्होंने को प्रधान जो लगा वो रिपोर्टार्ज लगा और उन्होंने वो रिपोर्टार्ज में लिखा। इसकी जो दूसरी बात यह है कि जब मैं प्रकाशकों के पास जा रहा था तो इस किताब को लेकर के उनके मन में संशय था कि हिंदी में उपन्यास जो है वो केंद्रीय विधा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, या अभी जो पढ़ी जा रही हैं वो प्रेम कहानियां पढ़ी जा रही हैं तो इसको कैसे रहेंगे। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये नॉन फिक्शन की है और नॉन फिक्शन का दौर चल रहा है। तो उन्होंने कहा नॉन फिक्शन में भी ये पॉलिटिकल नहीं है और किसी व्यक्ति के खिलाफ या समर्थन में, किसी पार्टी के खिलाफ या समर्थन में नहीं है, या फिर आप ऐसी कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी नहीं है पत्रकारिता में भी और साहित्य में भी कि आप अपनी जीवनी को भी लेकर आए, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ये किताब बिकेगी। इन सारे जो बातें थी और वो कोविड का दौर भी था, मुझे लग रहा था कि ये किताब उतनी चलेगी नहीं। बट ये किताब राज्यपाल ने प्रकाशित करी, 7 महीने के अंदर तीसरा संस्करण आ गया है। और जब हम बातचीत कर रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रभात जी का, जेएलएफ का, कि इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं जो कि साहित्य के हाशिए पे भी है और पत्रकारिता के हाशिए पे भी है। 4थे संस्करण की तैयारी इसकी चल रही है, जो कि मतलब मुझे लगता है ये मैंने जो सोचा था उससे काफी हासिल हुआ। पाठकों से किस तरह के अनुभव रहे, क्योंकि ये किताब का नाम जरूर आपने एक देश बारह दुनिया रखी है, लेकिन ये मूलतः हम लोग तो हिंदी हार्टलैंड का मैं हूँ और हम लोग तो भारत का मतलब ही समझते हैं कि यूपी होना चाहिए, बिहार होना चाहिए, लेकिन ये तो पूरी तरह से एक पश्चिम भारत की जो मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की किताब, गुजरात के जनजातीय जीवन को लेकर या पिछड़े जीवन को लेकर किताब है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि आप हिंदी हार्टलैंड में, हिंदी तो देखिए जो भाषा है वो मानी जाती है कि भाई यूपी की भाषा है, बिहार की भाषा है, कहने को बहुत 10-12 राज्यों में बोली जाती है, लेकिन मूल रूप से तो इन्हीं की भाषा है। तो आपको ऐसा भी भय कभी लग रहा था कि इस किताब में तो वहाँ की कहानियां नहीं हैं, तो क्या पाठक पढ़ेंगे, वहाँ के पाठकों का कैसा अनुभव रहा हिंदी हार्टलैंड जिसको मैं कह रहा हूँ बार बार? देखो, हम लोग भी जर्नलिज्म में तो हमको यही कहा जाता है कि आपका लक्ष्य समूह क्या है। आप अगर हिंदी में किताब देना है तो हिंदी की स्टोरी करो, जिन राज्यों में किताब ज्यादा बिकेगी उन राज्यों की स्टोरी करो। और मेरी जो कहानियां था वो कोई तो कर्नाटक छू रहा था, कोई आंध्रा, कोई तेलंगाना, कोई मराठवाड़ा, कोई बॉम्बे, कोई गुजरात छू रहा था, मतलब बिहार से नहीं थी कोई स्टोरी, झारखंड से नहीं थी। तो ये तो एक सवाल ये भी था प्रकाशन में कि भाई ये किताब है, फिर यूपी और बिहार में और झारखंड में नहीं, तो फिर इसका रीडर का कैसा क्या होगा। लेकिन ज्यादातर जो किताबें खरीदी गई वो बिहार में खरीदी गई और झारखंड में खरीदी गई और बाकी जगह खरीदी गई। जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि ये देश की कहानियां हैं। और जो हमें बताया जाता है जर्नलिज्म में कि आदमी इतना स्वार्थी है कि अपनी भाषा, अपना क्षेत्रीय पढ़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि वो जिज्ञासा की वजह से कि देश के तमाम दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है वो किताब पढ़ना चाहता है। और इसीलिए मुझे जो इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसको कलकत्ता से भी खरीदा, आपका इधर तमिलनाडु से भी खरीदा, क्योंकि अब हिंदी का जो सर्किल है वो बढ़ रहा है। अब हिंदी का बेल्ट हिंदी में नहीं रह रहा है, वो गुजरात में भी है, वो महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी और तमिलनाडु में भी। और बाइलिंगुअल होने की वजह से लोग हिंदी को पढ़ते हैं। और इसका रीडर जो बड़ा, एक तो भाषा है, दूसरा इसका केवल ना तो जर्नलिज्म की किताब है सिर्फ, ना सोशल साइंस की किताब है और ना ही साहित्य की है। तो ये 3 तबकों में जो है ये किताब मतलब ज्यादा लोग खरीद रहे हैं इस वजह से। एक चीज मैंने ये देखा कि जैसे इसमें कुछ कहानियां जैसे बंजारा जाति को लेकर कहानी लिखी है और आपने घुमंतू जातियों को लेकर, घुमंतू समझी जो जातियां हैं जो एक जगह नहीं रहती हैं, समाज के बिल्कुल ऐसे तबके जिनसे बातचीत, जिनके बारे में लोग सोचते भी नहीं है, उनके बारे में लिखते हुए, उनसे मिलते हुए, उनसे बात करते हुए आपको किस तरह का अनुभव हुआ? कोई परेशानी का अनुभव हुआ या कुछ ऐसा कुछ शेयर करना चाहें?
अर्ध घुमंतु और घुमंतु जो जाति है वो बेसिकली ज्यादातर जो काम करती है वो ट्रेडिशनली लोगों का मनोरंजन करती है बिना टिकट में, क्योंकि ये जो सिनेमा है ये टिकट लेता है, वो अपना बिना टिकट में, और जिसकी जो इच्छा होती है उस हिसाब से पैसे लेता है वो। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है उनको वो स्पेस भी नहीं है, यानी मनोरंजन कराने के बाद भी उनकी आजीविका नहीं है। आज जो है इंटरनेट का दौर, उसके पहले टीवी का दौर रहा, तो वो जो उनका ट्रेडिशनल दौर था वो वहाँ क्राइसिस है। अच्छा, उनका जो है एजुकेशन उस तरह से नहीं हुआ, मेन स्ट्रीम में उस तरह से नहीं लिया गया, इसलिए एक बड़ी समस्या ये है घुमंतु और अर्धघुमंतु जातियों को लेकर के कि वो किस तरफ जाएं, और जो समाज है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता आसानी से। वो क्या है, आते हैं और चले जाना चाहिए उनको, उनको रुकना नहीं चाहिए। अगर उनको रुकते हैं तो कहीं चोरी होती है, कहीं कुछ वारदात होती है तो उसको क्राइम से जोड़ते हैं, और इस तरीके से सारी चीजें हैं। पर एक जो स्टोरी है वो तिरमली जनजाति जो नंदी वैली की जाति है उसकी कहानी है, और वो बहुत पॉजिटिव कहानी है। और वो पॉजिटिव कहानी इसलिए है कि वो मनरेगा की बात नहीं कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें जमीन दे दो। और उनकी जो लड़ाई है वो जमीन की, और जमीन स्थायी आजीविका का प्रतीक भी है और स्वाभिमान की का प्रतीक भी है। और वो लड़ाई जब उन्होंने लड़ी और उस लड़ाई को जीता और बंजर जमीनों पे फसल उगाई, और उसके बाद जो पंचायतों में भी जगह बनाए, और उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो पुलिस में है और राज परिवहन बस में कंडक्टर, जो कि खुद डरते थे बसों में चढ़ने से या पुलिस देखकर। और वो बहुत बड़ा रोल मॉडल, उनके बहुत विधायक उनका रोल मॉडल नहीं है, उनके रोल मॉडल वही पुलिस वाले और वही बस कंडक्टर है, और ये एक अलग तरह की दुनिया है। और इसमें कोई बदलाव आपको दिखा, जैसे ये सैकड़ों सालों से इनके प्रति जो उपेक्षा का भाव रहा है, इनको विस्थापित किया जाता रहा है, उस स्थिति में कोई बदलाव आया है? आपको क्या लगा? उस स्थिति में बदलाव 2-3 जगह तब आए जब बाहरी समाज ने हस्तक्षेप किया। जो संगठन होता है, दलित संगठन है या आदिवासी संगठन है, क्योंकि हमारा समाज तो यथास्थितिवाद में भरोसा रखता है, वो समाज उनमें चेंज लाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि उसको लगता है कि ये हमारा कुछ छीन ना ले या ये बढ़ ना जाए हमसे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हस्तक्षेप जो होता है वो बाहरी समाज का है। एक स्कूल है जो कि महादेव बस्ती का स्कूल है, पारदी स्कूल है, जिसको क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता है। अब कानून में वो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन लोगों की मानसिकता में वो है। और वहां जब हम गए तो उनको लगा कि पुलिस के मुखबिर होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि वो जो है बातचीत में सहज हुए। और वहां जो चल रहा है स्कूल, वो महाराष्ट्र का आदर्श स्कूल है। और वो नई जो पीढ़ी है, जो अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा से चीजें बदलती हैं, उसमें उनका ध्येय है और उम्मीद है कि नई पीढ़ी कुछ करेगी। हमने जो भोगा वो ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि आसपास का समाज क्या उसको फिर से समाहित करेगा। और मतलब द्वंद्व भी है, और चेंज के भीतर भी, चेंज के बाद ऐसा नहीं कि राहत है, चेंज आ रहा है, लेकिन वो 5वीं और 8वीं के बाद वो सरवाइव करेंगे क्या? उनको जो संविधान में अधिकार मिला है आरक्षण का, उसको हासिल कर पाएंगे? ये सारी चीजें, अभी सारी कहानियां अधूरी हैं, क्योंकि जिंदगी भी अधूरी है। ये इधर देखने में आया है कि जो इस तरह की उपेक्षित समझी जाने वाली जो जातियां जनजातियां थी, उनका राजनीतिक नेतृत्व भी उभर कर आ रहा है, उससे उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जैसे यूपी में हमने देखा, तो उस तरह से आपने मराठवाड़ा में, जो सबसे समृद्ध समझे जाने वाले इलाकों में है महाराष्ट्र के, कोई बदलाव उसमें दिख रहा है आपको? बदलाव एक तो क्या है, हम बदलाव को डेवलपमेंट और सरकार के भरोसे मानते हैं। समुदाय में जो मानसिकता बदलनी चाहिए, वो समुदाय की मानसिकता में ये है कि वहाँ सामंतवाद है और वो उस स्थिति में रहना चाहते हैं। हमें लगता है बड़े और संपन्न किसान हैं, लेकिन उसके भीतर एक जातीय ढांचा है, और उस जातीय ढांचे के भीतर में एक शोषण है। और वो जो है बड़ा किसान खेतों में मजदूरी में जो है वो शोषण करता है। लेकिन मराठवाड़ा की कहानी कुछ अलग तरह की थी। वहां का एक आदमी कर्नाटक जाता है और वो 6 से 8 महीने रहता है, जबकि काम उसके गांव में है। लेकिन वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा सिलसिला चलता है। कॉन्ट्रैक्ट का सिलसिला ऐसा कि मैं मुकद्दम हूँ और मेरा चीनी मिल से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो मैंने कहा कि ये जो खेत है, इस खेत के मैं गन्ने कटवाऊंगा और आपको दूंगा। अब जो मजदूर होगा वो मेरे साथ डील करेगा,
और मेरा अगर कर्नाटक में कॉन्टेक्ट है तो मैं यहाँ के मजदूर को कर्नाटक ले जाऊंगा, कर्नाटक का मजदूर इधर आएगा, क्योंकि वो एक चक्र है, बीच में मीडिएटर है। और तो ये एक नई तरह की चीज थी कि भाई आपके पास काम तो है, वहां फैक्ट्री भी है, गन्ने कट रहे हैं, लेकिन वहीं का आदमी जो है मीडिएटर की वजह से जहां कॉन्टेक्ट होगा वहां जा रहा है। दूसरी बात मुझे लग रहा है कि बाल श्रम का इसमें एक नया रूप उभर कर आया कि जितने जोड़े होंगे उतना ज्यादा मजदूरी मिलती, तो वो अपने बच्चों की शादियां खेतों में ही कर देते हैं, और जितने ज्यादा जोड़े होंगे उतनी मजदूरी मिलेगी। तो ये कुप्रथाएं मतलब नए नए तरीके से मुझे देखने को मिली, और असंगठित इतने हैं कि हम उन्हें समझाने का इसलिए मतलब नहीं कि हमारे पास इसका कोई हल नहीं है। आप कहोगे शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। उनको मालूम है कि शिकारी है, जाल है, लेकिन 2 जून की रोटी जो है उसका आपके पास कोई सीधा उत्तर नहीं है, और वो की वजह से वो लगातार वो काम करते रहते हैं। और ये जो गन्ने के खेत जो है वो मिठास है, लेकिन कहानियां जो है वो कड़वी हैं। जी बिल्कुल, आपके अभावों के एक देश, इस रूप में ये 12 कहानियां एक देश की तरह बनती मुझे लगी कि एक अभाव भरे उस भारत को दिखाता है जिसका चेहरा एक समृद्ध भारत के पीछे छुपा रहता है। आपने लगातार ऐसे समुदायों को, ऐसे किरदारों को उभारने का काम किया है, और ये ऐसी बातचीत है, मेरी उत्सुकता कभी खत्म नहीं होगी। मैं लगातार आपसे एक एक किस्से पे इतने किस्से पूछता चला जा सकता हूँ, लेकिन हमारे पास सामने बैठे भी कुछ लोग हैं जो आपसे शायद कुछ सवाल आपसे शायद पूछना चाहें, तो आप लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। सर मेरा आपसे क्वेश्चन, काठियावाड़ी जो कामाटीपुरा जो जगह है उसके ऊपर है कि वहाँ पे जो सेक्स वर्कर्स है तो उनको कानूनी अधिकार मिला नहीं। जैसे अभी तक गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी भी आई थी, तो उसके आपने वहाँ की रियलिटी देखी है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट का बुलडोजर है ना, ये किसी को नहीं छोड़ता। जो मैंने कमाटीपुरा देखा था वहां पे डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन जो कमर्शियल एरिया है ना अभी उसको तोड़ा जा रहा है। मैं बाद में गया कहानी लिखने के बाद में, वो चीजें ना कमर्शियली तोड़ा गया क्योंकि वहां मॉल बनेगा। पहले वो चीजें सस्ती थी ना, अब वो जगह महंगी हो गई, तो वो जो किराए पे लेने वाले सेक्स वर्कर थे वो नहीं खरीद सकते, तो वो उनका जो जोन था सुरक्षित जोन वो टूट रहा है। अब वो कहीं जाएं तो वो खुद भी अनसेफ है, और ये एक्टिविटी भी ऐसा कल्चर है हमारे समाज का कि वो असहज है। तो ये नई नई तरह का जो चीजें हो रही हैं बिना मतलब बिना कोई बहुत नीतिगत सोचे विचारे, वो जो है उसकी तरफ। जहां तक कानूनी वैधता की बात है, तो इसमें कानूनी वैधता मतलब जिसको चाहिए वो स्वतंत्रता उसको मिलनी चाहिए, पर इस स्वतंत्रता में जो वैधता के बीच अवैध गतिविधि ना शुरू हो जाए। जैसे तस्करी है, जो छत्तीसगढ़ से जो ट्राइबल आती हैं, पिछले दिनों कहानियां आई, या झारखंड से आती हैं, तो भाई वैध है, लेकिन उसके पीछे एक अवैध बहुत बड़ा एक क्रिमिनल, एक बहुत बड़ी गतिविधियां ना होने लगे। ये मेरी बात है। थैंक यू सर। मेरा सवाल ये है कि जो वेश्यावृत्ति देश में हो रही है उसको कानूनी दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? क्या वैधता मिलनी चाहिए? वैधता मिलने से क्या क्या जनता को सुविधा मिलेगी? क्या क्या मतलब उसको सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इसके लिए? वैधता से महत्वपूर्ण ये है कि उनका पुनर्वास होता है कि नहीं होता है। पहला जो है ये वो है कि भाई कानून तो मिल जाए, उसमें कोई कहीं दो राय नहीं, लेकिन उनका पुनर्वास होगा कि नहीं। पुनर्वास से मतलब उनकी जो नई पीढ़ी है उसको शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो अगर इस चीज से दूर रहना चाहते हैं तो वो अधिकार भी उनके पास है कि नहीं है, और वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीना चाहते हैं, तो सरकार के पास इसका क्या विकल्प है? क्या सरकार इस नीति में उनको रखती है कि नहीं रखती है? मेरे हिसाब से इसका सवाल का जवाब ये है। शिरीष खरे जी, मैं तिजारा से आया हूँ, राजस्थान अलवर से। मैं कुछ आर्टिजनों के जो आर्टिस्ट हैं, जो गांव में काम कर रहे हैं, जो कलाएं हैं, लोक कलाएं हैं, संस्कृति है, उसके बारे में आपका जो भास्कर क्या कर रहा है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कौन क्या कर रहा है? जो भी ये बड़े लोग हैं, जो भी ये आर्टिस्टों के बारे में कौन लोग सोच रहे हैं? जो बहुत ग्रामीण है, जो खाट बुन रहा है,
छोटे छोटे वाल मिंट्स बना रहे हैं, छोटी छोटी बंदरवाल बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं जो गांव में रहते हैं, उनके बारे में कौन क्या करेगा, ये लिटरेचर फेस्टिवल क्या करेगा या आप लोग क्या करोगे, इसके बारे में आप बताइए। दरअसल महाराष्ट्र जहां से मैं आता हूं ना, वहां पे कलाकार डिपेंड नहीं है। वो आपसे उम्मीद ही नहीं करता, अपेक्षा नहीं करता कि सरकार हमें 2 पैसा फेंक दे। ये जो पट्टी है दिल्ली वगैरह जो आसपास डेवलप हुई है एंटरटेन के नाम पर कि सरकार को हमें पैसा देना चाहिए, वो लोग ये बात करते हैं जो एक खास क्लास के हैं, जो फोक में है, लोक में है, वो इसकी बात नहीं करता है। हाँ, कोविड का सीन अलग था। कोविड के सीन में पहली बार उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से कहा था कि हमने कभी आपके को पैसा नहीं मांगा, लेकिन पहली बार हम ये कह रहे हैं कि हमें कोविड के समय तक पैसा दे दो। उसके बाद जो है हमारा अपना है, नौटंकी है, तमाशा है, और भी जो दूसरे ग्रुप हैं, और वो हम चलाएंगे और लोगों से पैसा लेंगे। हमारा 6 से 8 महीना पहलवानी है हमारे पश्चिम महाराष्ट्र में। वो पहलवान, उनका देसी पहलवानी अखाड़े, पाकिस्तान से पहलवान आते हैं, वो सरकार से कभी ये नहीं कहते कि आप हमें पैसा दे दो। एक सवाल मेरे ख्याल से हम और ले सकते हैं, हमारे पास समय की सीमा है जी। शिरीष जी, मेरा नाम साहिती है। बहुत खुशी हुई है आपके किताब में 12 कहानियां 12 अलग स्टेट से है सुन के। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टेट्स आपने ऑब्जर्व किया है, उसमें लोअर मिडिल क्लास सेक्शंस में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, खास करके फिनेंशियल, वो सिमिलैरिटीज आपने क्या देखा और डिफरेंसेस क्या देखा? मतलब आपके नजरिए से, ऐसा नहीं कि मतलब पॉलिसी के हिसाब से बात करना है, आपके नजरिया जानना है। इसमें देखो, ये है कि आपकी जरूरत क्या है। एक आदिवासी को बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, वो नगद में कम विश्वास करता है, उसके लेन देन बहुत अलग होते हैं। उस समाज की जब आप बात करोगे तो उस समाज में जंगल वहां का बैंक है, जल जंगल जमीनी वहां की फसल है, और उनका पूरे की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी जंगल पर है। जैसे हम वो चीजें तोड़ के आते हैं ना, तो हमें पैसा 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 पैसा, बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। तो मेरा ये कहना है कि उसके बावजूद भी वो सुखी हैं। जैसे मैं ट्रेवलिंग के दौरान गया था चुटका जगह जहाँ परमाणु बिजली घर बन रहा था, तो उस समय तक जीप लेने के लिए मुझे नहीं आई। मैं तो उसमें चलता हूँ, ज्यादातर जो मैंने ट्रेवलिंग करी है वो बहुत बड़े बजट से नहीं करी है, सार्वजनिक जो वाहन होते हैं उनसे करी है। तो मैं वहां रात में रुका, और रात में रुका उस जगह पे सरकार ने अभी तक बिजली नहीं पहुंचाई, जबकि बिजली के नाम पर ही उनको डिस्प्लेस किया गया बरगी डैम से। तो वहां बिजली नहीं थी, पूरी रात हम अंधेरे में रहे, लेकिन वो खुश थे मछली खाते हुए। तो ये कोई पैमाना नहीं है, मतलब अभावों के बीच में खुश कैसे रह सकते हैं, वो मैंने उनके बीच रहते हुए जाना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सत्र चल रहा है, लेकिन समय हमारा समाप्त हो रहा है। आप सब लोग शिरीष खरे के इसके एक आखिरी सवाल, बिल्कुल छोटा सा सवाल आप पूछें। नमस्ते सर जी, मेरा नाम ललित कुमार पांडे है और मैं जयपुर से ही हूँ। तो आप जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं 12 कहानियां 12 स्टेट्स, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं आपका एक अनुभव जानना चाहूँगा कि कल्चरल इकोनॉमिक्स या सोशो इकोनॉमिक्स जो हम बोलते हैं, ठीक है, अब ये जो डिजिटल वर्ल्ड आ रहा है और अब जो नया एक एरा आ रहा है, तो इन ट्राइब्स को और जो लोग हैं, ये एक असमानता की तरफ या बढ़ रही है, ये दिख रहा है। तो इस कल्चरल इकोनॉमिक्स जो सारी की सारी आपने 12 कहानियां लिखी, जो आपके अनुभव है, इसमें आप कैसे देखते हैं कि इसको हम कैसे, जो एक इनइक्वालिटी आ रही है, शिरीष जी जवाब। इसमें क्या है, ये विकास के विरोधाभास से जुड़ा प्रश्न है। विकास का विरोधाभास मतलब क्या? मतलब एक उदाहरण दे देता हूं मैं। वर्गी डैम बना, वर्गी डैम बनने के बाद उन्होंने कहा कि नहरें निकलेंगी, नहरों के बारे में बताया कि जो तस्वीर होगी वो हरियाली की होगी, और डिस्प्लेसमेंट किसको किया? जहां से नहरें निकलनी थी, है ना, और उनको मुआवजा नहीं मिला। अब ये इन्होंने कहा ठेकेदार ने कि ये 50 साल नहर चलेगी, 25 साल में नहर फूट गई, है ना, वो वहां पे पानी आ गया, और वो जो आसपास हरियाली की जगह पानी आ गया, दलदल हो गया। तो एक को तो मुआवजा मिला नहीं, दूसरा क्या बोल रहा है, जमीन के बदले जमीन दे दो हमें, है ना। तो ये लाभार्थी भी वहां मांग रहा है
और जो मिल गया वो भी मांग रहा है। ये पूरे की पूरा जो डिबेट है वो विकास के चलिए, विरोधाभास का है। बाकी बातें इनकी किताब पढ़ के भी जानने की कोशिश कीजिएगा, एक नया भारत आपको दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिरीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।